Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. My dear fellows, students, and colleagues, and those who are interested in my field, that is, I belong to internal medicine, and the subjects are very wide. They are covering from head to foot, as you know. All systems are covered in this subject, or all. So you have to interpret the patient, or you will take the patient as a whole. On this basis, we are actually taking the systems and their disorders. A series which I am actually now on, at the end now, is the clinical hematology. I'm talking about the last few lectures of disorders of bleeding and disorders of clotting. Remember, there are certain factors operative for the clotting, and there are certain factors in the interior of the body which can cause a clot formation, or from what we call as clotting mechanisms. The balance between the two is the life. The flow of the blood in the vascular system is the life. If one system is disturbed, the other will predominate and will cause the problem. In the previous lecture, I've said that the clotting mechanisms in the body, if they are dominant, then the clotting will occur. If the bleeding factors are operative dominantly, then the clotting factors, they will lead to the bleeding. In the last lectures, I have talked about the bleeding disorders. Although the whole of the knowledge is not completed in these 2 or 3 sessions, but whatever I have said, it is enough for the final year or for the masters or memberships or for the fellowships. If they follow these videos with the help of the textbooks, I am saying textbooks, not the internet. Because the internet, if you are using internet, then the subject will be controversial, because there are certain debatable, theories given about the different type of the diseases, which will not be accepted by the examiners. They want the reference. If you give you are referring to the internet that you have learned in this internet, they will capture you. If you say a journal, and that journal is indexed, highly indexed, then they will accept. Otherwise, they will only accept the very authentic books. In the United Kingdom, they are accepting the Davidson Clinical Medicine or PK or related. Or in the American zone of countries or influenced zone of countries, the Harrison Textbook of Medicine is the book of the choice. So they say that it is the Bible of the medicine. If you are quoting anything from the current medical diagnosis, from this or from the current medical diagnosis, it will become highly authentic, because it is accepted by the WHO. And you know that it is the authority in the world. So whatever I will speak, now it is from these knowledge which I have obtained during
in last 40 to 45 years. So today I want to discuss about this. The mechanism of the clotting is dominant rather than the bleeding. And you know the natural way of that the bleeding occurs, while the stages I have already talked about. The clotting mechanisms in the body is from the cascade intrinsic pathway or extrinsic pathway. And these factors are usually produced by the liver, hepatocytes. Intrinsic pathway factors are not vitamin K dependent, but extrinsic factors are usually on vitamin K dependent. And vitamin K, which I said that it is the vitamin which is water soluble vitamin, usually produced in the body. They said it is produced and secreted by the coliform bacteria, and it will be supplied in the foods also, because very little amount is needed. First point is this, that the clotting mechanisms are operative predominantly and the bleeding factors are recessive. So clotting occurs in the body. So a clot in the body. One important thing is that if you are evaluating this type of patients, there are certain things which have to be remembered. The natural anticoagulants. Coagulants are there. But what are natural anticoagulants? Protein C, protein S, and antithrombin 3. And in some condition it is factor 5 and factor 2 leading. If these are deficient, natural anticoagulants, because they are anticoagulant, if they are missing, the body will form a clot. If they are over excessively work, then the bleeding will occur. Simple as that. So one way to understand this phenomena is this, which I have said. Some pathological anticoagulant or coagulants are present, for example, in APLA syndrome, that is anti-phospholipid antibody syndrome, lupus anticoagulant, or anti-cardiolipin antibody syndrome. One is coagulant and second one is the anticoagulant. So these two are, one polar end is clotting, one end is bleeding. Polar ends. So one polar end which I am going to discuss is this clot formation in the body, excessive, and this is described as clinically as thrombosis and embolism. So this is session 1 which I am talking. A scenario: a 56-year-old uncontrolled diabetic lawyer was fallen in court defending a case. It is not a grace case, it is a true case. In fact, he was my father. He was a very, very renowned criminal lawyer, and he died at the age of about 55, 56, when I was in intermediate. He was actually not followed up properly, or he was not interested because he was a very busy person. So he developed diabetes at the age of about 26 years. When I born actually at that age, about 1955 or 54. So he was diabetic and he was on the oral anticoagulant at the time, oral antidiabetics at the time, available anticoagulant that is the sulfonylureas at that time. And they combined with the metformin at that time. Now, he was fallen in the court defending a case.
Now he was diagnosed as the right-sided complete stroke and was admitted in the civil hospital, Karachi, in the neurological ward. He was on the recombinant therapy, which was advised, and after 3 days of admission, he became breathless, sudden breathlessness. It was sudden breathlessness and there is tightness in the chest. After a consultant round, worsening in 2 hours to become unconscious. After 2 to 3 hours of laboured breathing, he became unconscious. On examination, the 99-degree temperature, pulse was 131, irregular pulse was there, and blood pressure was 74/44, hypertension. Respiratory rate was 38 per minute, is very high. Glasgow Coma scale was 4/15. Sunset sinuses was positive. And lung fields, they are clear. Important thing is the lung fields. And clear, and there is nothing in the cardiovascular system to be mentioned. And the question is what is the differential diagnosis for this respiratory distress? Try to understand this problem. And he has fallen into some part of infective process. For example, pneumonias, or he has got choked during feeding, or he developed ARDS then, or there is something else which is going on. Sudden, he may become the possibility of the acute myocardial infarction leading to the left ventricular failure acute, but there are no signs of left ventricular failure in this patient. The fourth diagnosis was made as pulmonary embolism. And at that time, in 1973, it is very difficult to assess the pulmonary embolism on the right time, because they are thinking something else in their mind. Now, this is a good example in which the cases are missed. So this is the differential diagnosis. How will you investigate? At that time, it was the investigation, you go for the XHH, you go for the ECG, you go for the other tests as you will do, the routine, the CBC, the RBS, and urea creatinine, electrolyte, LFTs, and like this. Now, what is the most probable diagnosis in this case? Now, clinically speaking, sudden breathlessness, tightening of the chest, hypertension, irregular pulse means that atrial fibrillation, chest cleared, SpO2 was reduced, central cyanosis. It is at the vascular end actually of the respiratory system which is involved. It means the blood supply of the lung is involved. It means there is something blocking the pulmonary circulation. It means that he had developed some clotting problems which are blocking the pulmonary vasculature. It means that it is the pulmonary embolism, clinically speaking. At that time there was, nothing more than that. How you diagnose? There was nothing like at that time the FDP, difficult to do it in 1973, and the dimer. Only thing is that the thrombocytopenia you can, or there will be anemia, or like these things can possibly be done in this stage, and PT and APTT. For the DIC, it is okay, fine, but for the pulmonary embolism, it is not helpful. It can help only to differentiate, otherwise it is not helpful. And there are certain parts, keen eyes can pick the changes in the lung fields during the plain radiography. Otherwise you cannot do it. अब जो X-ray बता रहा था जब मैं,
मैंने आपको बहुत कोशिश की समझाने की कि देखें जो आईज रेडियोलॉजिस्ट देख रहा है वही आई आपकी हैं, दोनों में डिफरेंस ये है कि वो रोज़ाना इसको देखे जा रहा है। आपका मसला ये है कि आपने पेशेंट देखा हुआ है, उसने पेशेंट नहीं देखा हुआ। लेकिन अगर आपको सही एंगल से देखना आता है एक्सरे को तो आप तो पकड़ लेंगे उसको। लेकिन अगर वो बंदा जो है ना उसको बहुत मुश्किल होगी। प्लेन रेडियोलॉजी की बात हो रही है। अभी तो आजकल जो है ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डायग्नोज करना आसान है कि आप सीटी जो है ना वो आप करा लेते हैं, पल्मोनरी एंजियोग्राफी करा लेते हैं। वैसे तो गोल्ड स्टैंडर्ड इसका तो पल्मोनरी एंजियोग्राम है, लेकिन सीटी पैलोग्राफी आप करा लेते हैं तो पता चल जाता है। ईसीजी पढ़ना खरे कि उसकी बात नहीं है, यहाँ तो एट्रियल फिब्रिलेशन है, ये तो मसला ये हो गया। उसके अंदर जो चेंजेस डिस्क्राइब की गई हैं ना ईसीजी में स्पेसिफिक नहीं है, डायग्नोस्टिक नहीं है, वो और कंडीशन में भी पाई जाती हैं, जैसे टी वेव इन्वर्जन है या क्यू वेव का जो है प्रोमिनेंट हो जाना है इन सर्टेन लीड्स एक्सेट्रा, बट दे आर नॉट डायग्नोस्टिक एट ऑल। द क्लिनिकल सिनेरियो प्लस सीटी एंजियोग्राम is the diagnostic criteria, that's all. What about PT or APTT or thrombocytopenia, D-dimer, or ELISA or FDP, they are helpful, but not diagnostic. What are the lines of management? The pulmonary embolism means that the clotting mechanism is activated, and the root cause may be from the lower limbs possibility because the patient was non-ambulatory for 3 days. Probably some physiotherapy has been done, I don't know, I don't remember. And he developed this. He was a smoker. The risk factor operating in him was diabetes as well as smoking. हम इन सबको आप जमा आप करेंगे तो फिर ये निकलेगा आखिरी में यही कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, और इसको करने का यह तरीका है कि क्लॉट को तोड़ दें आप, एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल करें। एंटीकोगुलेंट जो आप इस्तेमाल करें, या आप जो है ना फिब्रिलोलिसिस करें इसकी, या आप इसकी जो है वो जिसे कहते हैं इंटरवेंशन करके और आपको क्लॉट मिल जाता है फर्स्ट करें तो उसको रिमूव करें एट दैट प्लेस। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बचा सकते हैं तो इस तरह बचा सकते हैं। अब ये पेशेंट जो जाता है रेस्पिरेटरी फेलियर में जाएगा, और फिर उसके बाद जो है ना सीवियर जो है ना रिटेंशन हो जाएगी, इसको हाइपर कैप्निया होगा पेशेंट को, बड़ा ज़बरदस्त हाइपोक्सिया के साथ। तो उसमें उसको उस ज़माने में वेंटिलेटर तो नहीं होते थे 1973 में। तो द पेशेंट माय फादर डाइड एट द एज ऑफ 56 एंड हिज विश ये थी कि वो चाहते थे कि डिफेंड करते हुए डेथ हुई उनकी, और दूसरी विश ये थी कि किसी की डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि मेरे जो अपने एल्डर ब्रदर थे वो मुझसे बड़े हैं 9 साल, तो 25 ईयर्स के थे वो। उनकी अभी अभी जॉब लगी थी, प्राइमरी स्कूल में टीचिंग कर रहे थे वो। और मेरा से जो छोटा भाई है उस मुझसे 7 साल छोटा है, तो वो ये छोड़ के इंतकाल हुआ था उनका। अब आप ये सोचें कि हमने जो है ना फिर क्या स्ट्रगल की होंगी अपनी लाइफ में। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ये बात, ये जो केसेस जो होते हैं ना जो इस तरह आते हैं, और जो इसमें इन्वॉल्व होता है आदमी, उसकी जो फैमिली भी पीछे, पूरी फैमिली जो होती है वो सफर होती है। अगर ये मिस हो गया, फर्स्ट करें यहाँ पे ही पकड़ लेते हैं, जब इन्होंने पहली दफ़ा कहा कि मेरा सांस घुट रहा है, तो शायद ये बचा लिए जाते हैं। हमने कहा कि मैं ऐसे मेडिकल स्पीकिंग बात कर रहा हूँ, हालांकि मना किया गया है, इस्लाम में मना नहीं किया गया है। काश ऐसा होता, काश ऐसे कर लेते, ये हमारी गलती थी, इस तरह के जुमले कहने से मना किया गया है। और ये कहा गया है कि अपने आपको जो अल्लाह के हवाले कर दो कि अल्लाह की इसमें हिकमत शामिल थी। तो इसीलिए कहा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। He was a very, very, person, very, very literary person, very, very highly qualified person. He was practicing as one of the leading lawyer at that time, where the Broi Sahab was also practicing. Zulfikar Ali Bhutto was practicing with him. And at that time, लॉयर वो लॉयर थे कि उनके नाम, सिंध की बात हो रही है कि वहाँ मतलब समझते थे कि इनके आगे कोई भी नहीं कर सकता, इतनी ज़बरदस्त क्रिमिनल उनको आता था
क्रिमिनोलॉजी आती थी एज अ लॉयर, तो वो लॉस हो गया एक कंट्री को, तो एक अलग बात है, इतना अच्छा लॉयर मिस हुआ उससे। हमारी क्या इसमें कोई खुदा ना खास्ता, यानी स्पीकिंग एज अ मेडिकल पर्सन, यहाँ पे अगर इसको पकड़ लेते, इनको पकड़ लेते और एंटी कोगुलेंट दे देते, उसमें हेपरिन मौजूद थी, तो ये शायद जो है ना वो, और सही ऑक्सीजनेशन दे देते तो शायद ये बच जाते। शायद वाली लगी ना बात, क्यों? वजह ये है, इसको हम मेडिकली स्पीकिंग कर रहे हैं अपनी बात आपको बताने के लिए। अब ये था कि ये थ्रोम्बोसिस होगा पहले तो, यानी क्लॉट जो है वो थ्रोम्बस की फॉर्म में मिलेगा। क्या चीज़ है थ्रोम्बस? एन एग्रीगेशन ऑफ द ब्लड फैक्टर्स, प्राइमरी प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन with entrapment of the cellular elements, frequently causing the vascular obstruction at the point of its formation. So this is the formation of a clot, and thrombus means that it is the platelets clot plus fibrin clot entrapped with the cellular elements. Formation of a solid or the semi-solid mass from the constituent of the blood within the vascular system, within the life. क्योंकि आदमी की जब डेथ हो जाएगी तो थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, स्टेसिस हो जाएगी, ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनिशिएटिंग फैक्टर है। रुकावट होना, ब्लड का स्लो बहना, किसी जगह इंजरी हो जाना, वहाँ पे जो है ना वो इसको प्रॉब्लम होगा और वहाँ पे इनिशिएशन शुरू हो जाएगी, इंट्रिंसिक फैक्टर एक्सटिमुलेट हो जाएगा और इस तरह से वो साइकिल क्लॉटिंग कास्केड वाली जो है वो डोमिनेंट हो जाएगी और इस तरह से जो हमारे पास ब्लीडिंग फैक्टर्स हैं ऑपरेटिव कर रहे हैं बॉडी के अंदर नेचुरल रोकने के लिए, वो इतना कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए थ्रोम्बोसिस बन जाएगा पेशेंट को, तो उसका विरको ट्रायड ये है, पैथोलॉजी बेसिक है, वो हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट होनी चाहिए, ये विरको ट्रायड कहलाता है फॉर थ्रोम्बोसिस। एंडोथेलियल इंजरी हो और सर्कुलेटिंग स्टेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेसिस है, फिर हाइपर कोगुलेबिलिटी है और फिर जो है ना इसके बाद जो एंडोथेलियल इंजरी हो साथ, ये तीनों फैक्टर आप मिला दें तो फिर थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये थ्रोम्बस कहलाता है, थ्रोम्बोसिस। अब इंजरी अगर होगी तो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ये है कि इंजरी टू द एंडोथेलियल लाइनिंग्स आर्टरीज, क्योंकि इसमें हाई फ्लो होता है, इसके अंदर पॉसिबल हो सकता है। एनी पर्टर्बेशन इन द डायनेमिक बैलेंस ऑफ द प्रो एंड एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट्स ऑफ द एंडोथेलियम कैन इन्फ्लुएंस लोकल क्लॉटिंग इफेक्ट्स। अब इसके अंदर ये है कि एंडोथेलियल सेल खुद भी जो है ना एंटी कोगुलेंट का काम करते हैं। HDL जो अंदर आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं उनका भी यही काम होता है, वो एंटी कोगुलेंट के तौर पे काम करते हैं। एंटी थ्रोम्बन C अलग है, जिसे मैंने आपसे पहले कहा था, एंटी थ्रोम्बन 3 है, प्रोटीन C है, प्रोटीन S है। ये अगर ऑपरेट कर रहे हैं बॉडी में, ये रोकने की कोशिश करेंगे, इस थ्रोम्बस समस्या को नहीं बनने देंगे, लेकिन डोमिनेंट फीचर जो होंगे आपके पास वो विरकोट ट्रायड वाले होंगे, जिसमें से एक एंडोथेलियल इंजरी थी। और एंडोथेलियल इंजरी की इम्पोर्टेंट वजह जो है वो तो ट्रॉमा भी है, एक्सटर्नल ट्रॉमा हो सकता है, फिर इन्फ्लेमेटरी ट्रॉमा हो सकते हैं, केमिकल ट्रॉमा हो सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना वो इडियोपैथिक ट्रॉमा, मिसाल के तौर पर एथरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, और उसका प्लाक जो है वो जो है रप्चर हो जाए और वहाँ पे ये इंजरी हो जाए, ये डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। फिर एंडोथेलियल डिसफंक्शन के साथ द हेमोडायनेमिक स्ट्रेसेस ऑफ हाइपरटेंशन, टर्बुलेंट फ्लो ओवर द स्कार्ड वेल्स और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स, ये ऑपरेटिव हैं। होमोसिस्टिन्यूरिया, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, रिलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिगरेट स्मोक में इनिशिएट द एंडोथेलियल इंजरी। अगेन स्मोकिंग, मैंने कहा पेशेंट खुद स्मोकर था, ये भी जो है ना फैक्टर है, रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस है, यह एथरोस्क्लेरोसिस है। जब HDL का कम होना, LDL का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, होमोसिस्टिन का बढ़ना, ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं ये ऑपरेटिव फैक्टर हैं जो कि एंडोथेलियल इंजरी का बायस बन सकते हैं। यानी इन मिलू इंटीरियर की बात हो रही है। थ्रोम्बोसिस इन कार्डियक चैम्बर्स
over ulcerated plaques in the atherosclerotic arteries or the traumatic or inflammatory vascular injury हो जाए, and largely it is due to the एंडोथेलियल इंजरी. बेसिकली जो है ना वो एंडोथेलियम में आप किसी तरह से भी अगर इंजरी करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, तो वहाँ पे जो है ना ये इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा इनिशिएटिंग फैक्टर. जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, इंजरी होने से ये देखें यहाँ पे प्लेटलेट फॉर्मेशन शुरू हो गया, हेमोस्टेसिस हुआ, तो इसने क्या किया, मज़ीद ये जो है ना हेमोस्टेसिस किया, इसके अंदर फ्लो को कम किया. फ्लो के कम होने से मज़ीद ये विशेष साइकिल स्टार्ट हो गई, और फिर आखिरी में फिब्रिन क्लॉट बन गया इसके अंदर. ये सेल जो टूटे थे इसके अंदर एनट्रैप हो गए. नहीं, क्लॉट क्या चीज़ होती है? क्लॉट तो ये होता है कि एक बॉडी में आप ब्लड रख दें और वो जम जाए, और फिर वो यूज़ कर जाएगा तो सीरम कराएगा, और सीरम जो होता है उससे आप टेस्ट करते हैं, और जो अंदर जो सॉलिड प्रोडक्ट बनती है इससे, कोगुलम जिसे आप कहते हैं, वो क्लॉट कहलाती है. लेकिन क्लॉट जो होता है वो या तो फिर इस तरह की शक्ल में आएगा जिसके अंदर ये फीचर होना ज़रूरी है. जैसे अभी बात हुई कि उसके अंदर आपके पास प्लेटलेट जो है ना वो क्लॉट हो, जमा सेलुलर एलिमेंट्स हों, जमा फिब्रिन स्ट्रैंड्स हों जो इंसर्कल कर रहे हों इसको, तो फिर तो हो जाएगा. इसको आप थ्रोम्बोसिस कहेंगे. जैसे कि एसोसिएटेड और प्लेटलेट्स ब्लॉकेज हुआ, और ऑल्ट्रेशन इन नॉर्मल फ्लो, ये जो है जो फैक्टर टर्बुलेंस वाला जो है, आर्टीरियल एंड कार्डियक थ्रोम्बोसिस, एंडोथेलियल इंजरी और डिसफंक्शन, टर्बुलेंस, स्टेसिस एंड टर्बुलेंस के साथ जो डिस्टर्ब लेमिनर फ्लो होगा, प्लेटलेट्स इनटू कांटेक्ट विद एंडोथेलियम आ जाएंगे, डायरेक्टली एक्सपोजर, प्रिवेंट द डिल्यूशन ऑफ द एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स. डिल्यूशन ऑफ द एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स को जो है ना वो प्रिवेंट हो जाता है, और retard the inflow of the clotting factor inhibitors, and they promote the endothelial cell activation. इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. और जो आपने देखा कि थ्रोम्बोसिस के अंदर जो है वो वेरिकोस ट्रायड को बनाना ज़रूरी है, यानी एंडोथेलियल इंजरी हो, हाइपरकोगुलेबिलिटी हो जाए और स्लो हो जाए ब्लड, हाइपरकोगुलेबिलिटी हो जाए, इंजरी एंडोथेलियल इंजरी हो जाए, और ब्लड फ्लो जो है उसका टर्बुलेंस हो जाए, स्टेसिस हो जाए. कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्बुलेंस एंड स्टेसिस थ्रोम्बोसिस क्लिनिकल सेटिंग में एक अल्सरेटेड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स कॉमन मसला है. एब्नॉर्मल एओर्टिक एंड आर्टीरियल डायलेशंस है, एनेरिज्म्स में वहाँ स्टेसिस हो जाएगा, प्लाक बन जाएगा. फेवर्ड साइड ऑफ थ्रोम्बोसिस है. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर रीजन ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम स्टेसिस, स्लोइंग ऑफ द ब्लड in the ventricles and the atria. They are called mural thrombi. Mitral valve stenosis के अंदर जो है लेफ्ट एट्रियल डायलेशन, वहाँ पे बहुत बड़ा थ्रोम्बस बनेगा जो बॉल वर्ग थ्रोम्बस होगा. इतना बड़ा होगा कि वो ऊपर भी उसका हिस्सा जाएगा, एक नीचे भी हिस्सा आएगा. मिट्रल वेल्व बॉल वेल्व के तौर पर काम करेगा. जैसे कि मिट्रल वेल्व जो है ना वो वेल्व है, इसी तरह बॉल जो है ना वो जब ब्लड का फ्लो आएगा तो ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी. तो इनका जो प्रेशर है लेफ्ट एट्रियम का या राइट एट्रियम, जहाँ पे भी ये हुआ है वाक़या, वहाँ ऊपर नीचे जाती रहेगी, और स्टेसिस को वो करेगी, एनहांस करेगी, और उससे फिर ये मैकेनिज्म क्या होगा, और ज़्यादा जो है ना विशेष सर्किल ले लेगा. हाइपरकोगुलेबिलिटी जो है ना उसमें एक लेस कंट्रीब्यूशन, इसमें थ्रोम्बोसिस के अंदर इसका रोल इतना नहीं है जितना एंडोथेलियल इंजरी का है, स्टेसिस का है. प्राइमरी ये जेनेटिक डिजीज़ हैं कुछ जिनमें हाइपरकोगुलेबिलिटी होती है, सेकेंडरी में एक्वायर्ड होती है. मिसाल प्राइमरी के अंदर के डेफिशिएंट फैक्टर प्रोटीन सी है, प्रोटीन एस है डेफिशिएंट, या दोनों हैं, या एंटीथ्रोम्बन 3 है, या फिर फैक्टर 5 लीडिन जो है ना म्यूटेशन हुआ उसका, ये 2 का, वहाँ पे ये जो जेनेटिक फैक्टर्स आ जाएंगे. सेकेंडरी एक्वायर्ड में जो है ना कि आपने जो है ना वो क्या किया है कि इसको इन्हांस किया है इन फैक्टर्स को, कोगुलेशन की. तो सेकेंडरी कॉजेज होती हैं जिनमें इन्हांस हो जाता है कोगुलेशन, वो आएगी, आगे बात होगी. अब इनहेरिटेड कॉजेज है म्यूटेशन फैक्टर 5 जीन एंड प्रोथ्रोम्बिन पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेड डिफिशिएंसी ऑफ एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीथ्रोम्बिन सी और प्रोटीन सी और प्रोटीन एस.
Significance of inherited disorders are individually uncommon. Mutations are usually called inherited, A and B together, both co-inherited हैं. Factor 5 didn't, factor 2 didn't. Mutations, उनकी mutation. Higher risk of developing venous thrombosis. Higher risk of developing venous thrombosis arterial में नहीं होगा इतना ज़्यादा जितना venous में होगा. Inherited disorders अगर हैं तो. Acquired में एक more complicated and multifactorial है. इसके अंदर किसी वजह से भी stasis हुआ है, venous injury हुई है, increased hepatic secretion of many coagulation factors and reduced synthesis of antithrombin 3. अब ये लिवर के हेपेटोसाइट का जो मेटाबॉलिक डिसअरेंजमेंट है, डिसरेगुलेशन है उसकी, जिसकी वजह से जो है वो थ्रोम्बोसिस को इन्हांस किया उसने. कोआगुलेशन फैक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस करती है जबकि एंटीथ्रोम्बिन 3 को कम प्रोड्यूस किया. रिलीज ऑफ द कोआगुलेंट फ्रॉम द ट्यूमर. अब बहुत सारे ट्यूमर ऐसे हैं जो खुद वो कोआगुलेंट होते हैं. मिसाल के तौर पे जो है एस्ट्रोसाइटोमा है, मिसाल के तौर पे जो है वो रीनल सेल कार्सिनोमा है. ये प्रोकोगुलेंट रिलीज करते हैं वो. और एक और भी बात बता दूँ आपको जो पता नहीं हो, शायद पता हो शायद ना मालूम हो, और वो है जो अभी आजकल जो चल रहा है बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं टर्मिनोलॉजी, वो है सिंड्रोम एक्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम. वहाँ पे भी वो फैक्टर रिलीज होने शुरू हो जाते हैं. ये पेशेंट प्रोन होता है थ्रोम्बोसिस के लिए. जब ये प्रोन होता है थ्रोम्बोसिस के लिए तो कोई भी जो है ना क्लिनिकल पिक्चर लेके ये सामने आ सकता है. कोरोनरी भी हो सकती है, वो न्यूरोलॉजिकल हो सकती है, वो रीनल हो सकती है, वो पेरिफेरल वास्कुलर हो सकती है. हाइपरकोगुलेटेड स्किन विद एडवांसिंग एज, ये नॉर्मली जैसे जैसे उम्र चलेगी तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना वो होगा, बॉडी के अंदर स्टेसिस भी डेवलप हो जाएगा, और लिवर जो होता है वो जितना फंक्शन नॉर्मल कर रहा था उसकी डिसरेगुलेशन भी हो जाएगी. ड्यू टू इंक्रीज ससेसिबिलिटी टू द प्लेटलेट एग्रीगेशन, इनमें ये नेचुरल प्रोसेस है कि एग्रीगेशन इनकी जो है वो ज़्यादा होती है. इसीलिए एंटी प्लेटलेट्स 40 साल के बाद देने शुरू कर देते हैं एज प्राइमरी प्रिवेंशन. फिर स्मोकिंग इन्हांस करती है इसको, ओबेसिटी प्रमोट करती है इसको, हाइपरकोगुलेबिलिटी को अननोन मैकेनिज्म अभी इस वर्क हो रहा है कि ये तो कैसे करती है और ये कैसे करती है. प्रोबेबली इसके अंदर तो इतना समझ में आता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और दूसरे कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरे एजेंट भी शायद अभी तक दरियाफ्त हैं, उसके ज़रिए हो रही है. ओबेसिटी का भी यही है कि उसके अंदर बहुत सारे ह्यूमरल फैक्टर्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं, यहाँ पे उनको वो दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं कौन से फैक्टर हैं जो टकरा रहे हैं या बना रहे हैं या टकरा रहे हैं एंटीथ्रोम्बिन 3 को या प्रोटीन एस को या प्रोटीन सी को, जिसकी वजह से जो है ना वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म इन्हांस हो गया है. अब ये थ्रोम्बोसिस की टाइप्स बताई गई हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं. अब कहीं पे एक्चुअली थ्रोम्बोसिस कहीं भी हो जाएगा. उसके नाम लिखे हुए एगोनल थ्रोम्बस, दूसरा है एंटीमोर्टम थ्रोम्बस, थर्ड है बॉल थ्रोम्बस, मिल्क थ्रोम्बस, पैराइटल थ्रोम्बस, फिब्रिन थ्रोम्बस, हाइरिन थ्रोम्बस, इन्फेक्टेड थ्रोम्बस, प्राइमरी थ्रोम्बस, स्ट्रेटिफाइड थ्रोम्बस और ट्रॉमेटिक थ्रोम्बस. अब ये टर्मिनोलॉजी जो है ना क्लिनिशियन इस्तेमाल करते हैं, सारी जमा करके आपके सामने पेश करती है. थ्रोम्बोसिस है, आपको मालूम है टूट गया तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और वो एम्बोलिज्म कहते हैं. तो प्रोसेस जो कहलाएगा वो थ्रोम्बो एम्बोलिक प्रोसेस कहलाएगा ना. इसका मतलब तो ये हो गया. चलो इस पर डिस्कस करके देखते हैं. आपने कुछ टर्मिनोलॉजी सुनी भी नहीं होंगी अपनी लाइफ में, तो इसलिए आपको ये बता देते हैं क्या चीज़ है. एगोनल थ्रोम्बस वो है कि किसी की डेथ हो जाती है, जब पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम थ्रोम्बस कहते हैं. इसके अंदर आपको एक क्लॉट मिलेगा, इसके अंदर इतना बड़े बड़े क्लॉट्स मिलेंगे. हाँ, अब इन्होंने काटा है इसको हार्ट को, इसके अंदर इनको ये क्लॉट मिल रहा है, यहाँ क्लॉट मिल रहा है, यहाँ क्लॉट मिल रहा है. ये क्लॉट है, ये इसको एगोनल थ्रोम्बस कहते हैं. इसके अपने फीचर्स हैं. और फिर एंटीमोर्टम यानी ज़िंदगी के अंदर थ्रोम्बोसिस हुआ, ये फीमोरल वेन में इस तरह का थ्रोम्बस, ये रेडिश टिंज भी नहीं है इसका, ये थोड़ा ब्लूइश टिंज है इसका. फीमोरल आर्टरी का ये सेक्शन है जो म्यूजियम से लिया गया है, वहाँ से खोल के वेन को दिखाया गया है फीमोरल वेन में कि ये थ्रोम्बोसिस हो गया था. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
एंटीमॉर्टम थ्रोम्बस है, पोस्टमॉर्टम। एंटीमॉर्टम अगर किसी को थ्रोम्बस हुआ है, एक्चुअली की लाइफ है ये, तो इसलिए अडेरेंट टू द वॉल आपको मिलेगा ये। पोस्टमॉर्टम क्लॉट जो होता है नॉट अडेरेंट टू द वेसल वॉल, ये दरमियान में होगा, दो वेसल वॉल के दरमियान में होगा। ये रेड कलर का होगा जैसे मैंने दिखाया। और पोस्टमॉर्टम क्लॉट जिसे कहेंगे, थ्रोम्बस उसको नहीं कहें, इसके अंदर जो है वो फिब्रिन विद रेड सेल्स एंड ल्यूकोसाइट इन हैप्पैज़ार्ड नेटवर्क होता है, जेल जैसे लाइक होता है। अपर लेयर रिजेंबलिंग चिकन फैट जैसे होता है ना, उसके ऊपर लेयर बहुत शाइनी होती है। ये इस तरह आपको मिलेगा पोस्टमॉर्टम के अंदर। रेडिश कलर होगा उसका और फिब्रिन रेड सेल अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इसमें एक अहम चीज़ है जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लाइन्स ऑफ ज़ान प्रेजेंट। अब इसके अंदर आप हाई पावर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो इसको आपको लाइन्स ऑफ ज़ान मिलेंगी। इसके अंदर आपको कोई लाइन्स ऑफ ज़ान नहीं मिलेंगी, इसको ब्लेंड एंड नॉन लेमिनेटेड होगा, इसमें लेमिनेशन नहीं मिलेगा, ब्लेंड होगा ये बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पे आगे दिखाया गया कि इटियोलॉजी ऑफ लाइन्स ऑफ ज़ान क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्रोम्बस है। ज़िंदगी में अगर हो किसी को थ्रोम्बोसिस फॉर्म एट द साइड ऑफ द रैपिड आर्टेरियल ब्लड फ्लो, जहाँ पे स्पीड होती है आर्टरी में ज़्यादा, मिसाल के तौर पे एओर्टा है, कॉमन कैरोटिड्स है, वहाँ पे थ्रोम्बोस हुआ है, या लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो उसके अंदर क्या होता है कि लेमिनेशन प्रोड्यूस बाय द सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन। आहिस्ता 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 जो होता है वो प्लेटलेट जमा होने शुरू होते हैं, फिर प्लेटलेट के ऊपर जो है वो फिब्रिन आती है, फिर उसके ऊपर जो है ना जो डिब्रीज है वो भी आता है, पेल लेयर जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग विद द रेड ब्लड सेल डार्क लेयर्स होती हैं, जो एंट्रैप्ड रेड सेल्स उसके अंदर फंस जाते हैं, वो डार्क लेयर, द पेल लेयर्स डार्क लेयर, पेल लेयर डार्क लेयर्स, इसको कहते हैं लाइन ऑफ ज़ैन। इसको कंफर्म करने के लिए ज़ाहिर है इसको माइक्रोस्कोपी करके देख लें। अब ये ज़ाहिर है ज्यूरिस्प्रूडेंस का कि भाई पहले हो गया था, ये मरा हुआ आदमी है, उसके बाद उसको क्लॉटिंग हुई या ज़िंदगी में उसको क्लॉटिंग हुई है, इसलिए पोस्टमार्टम तो यहाँ करते नहीं। बहुत सारी रिसर्च आपकी जो है ना वो अधूरी रह जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो है ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की है, जो एक बहुत बड़ी लीडर है, शी वाज अ लीडर, नो डाउट अबाउट इट। उनकी लॉस से जो है मुल्क को बहुत बड़ा लॉस हो गया। और लेकिन पोस्टमार्टम अगर एग्जामिनेशन हो जाता तो हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाती। मैंने यानी कि अगर आप इस क्लॉट को निकालेंगे और आप देखेंगे, अभी एंटीमॉर्टम है तो उसमें जो है ना लाइन्स ऑफ ज़ैन्स मिलेंगी आपको। तो रेड लाइन्स हैं, फिर पेल लाइन्स हैं, रेड लाइन्स हैं, पेल लाइन्स हैं, रेड लाइन्स हैं, पेल लाइन्स हैं, रेड लाइन्स हैं, पेल लाइन्स, ऐसे लेमिनेशन मिलेगा। बॉल थ्रोम्बस जो है ना उसको कहते हैं बॉल, अगर एटीएम, खासतौर एटीएम के अंदर जगह बहुत छोटी होती है, वहाँ स्टेसिस हुआ, उसने बहुत बड़ा क्लॉट बना दिया। अब ये कुछ क्लॉट जो है नीचे तक भी आ जाएगा इन लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसको बॉल वॉल थ्रोम्बस कहते हैं, क्योंकि ये एक जगह नहीं बैठता, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता है। और ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है एटीएम एक्सोमा से, क्योंकि वो भी जो होता है वो पेंडिकुलेटेड होता है और वो भी मूव कर रहा होता है। दोनों को डिफरेंस करने के लिए वो क्या करते हैं कि फिर इसका डॉपलर करके देख लेते हैं। उसको डॉपलर का जो उसकी जो आपको फ्लो मिलेगा दोनों में अलग अलग मिलता है। बॉल थ्रोम्बस का अलग फ्लो होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इसी तरह से एटीएम एक्सोमा अगर ब्लॉक कर रहा है तो उसका अलग फ्लो होता है। ज़्यादातर टाइट मार्टिन स्टेनोसिस के अंदर ये बॉल थ्रोम्बस मिलता है। मिल्क थ्रोम्बस उसको कहते हैं, हम ये देखते रहते हैं, हम असल में फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, जो पेशेंट को लिटा के रखा हुआ है आपने, पेनफुल थ्रोम्बोसिस है फीमेल वेन का। इसका जो है ना ज़्यादातर जो नाम है फ्लिमेजिया एल्बाडोरेंस, ये गायनिकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स की बुक में लिखा होगा। वाइट लाइक सिंड्रोम, ये वो थ्रोम्बस है जिसके प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बस क्लॉट कोआगुलेटेड ब्लड अटैच टू द साइट ऑफ इट्स फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल, खासतौर पर लोअर लिम्फ में, खासतौर पर फीमोरल वेन की ट्रिब्यूटरीज में, पॉप्लिटियल वेन्स की ट्रिब्यूटरीज में। देखिए पूरा रेड हो गया है यहाँ, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। और इसने जो है ना एडीमा प्रोड्यूस किया है, यहाँ वाइट हो गया है सारा एरिया, और ये वाइट हो गया, ये यहाँ रेड चेंज हो रहा है, यहाँ वाइट हो रहा है। फ्लेग्मेजिया एल्बाडोरेंस
फ्लेग्मिया का मतलब ये कि रुकावट हुई, यानी थ्रोम्बोसिस हुआ, रुकावट हुई, उसने एल्बा किया, वाइट किया, डॉलेंस पेनफुल है। एक पैराइटल थ्रोम्बस होता है, वो थ्रोम्बस को कहते हैं पैराइटल ये लोग, जिसके अंदर इनको एविडेंस मिले कि वॉल जो है ना किसी भी वेसल वॉल के साथ आपको चिपका हुआ मिले और उसने जगह छोड़ी है फ्लो के लिए, उसको पैराइटल थ्रोम्बस कहते हैं। पार्शियल ब्लॉक किया इसने, फुल ब्लॉक नहीं किया इसने। ये कोरोनरी वास्कुलेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है पैराइटल थ्रोम्बोसिस का। और वो अगर आपके पास कम्युनिकेटिंग वेसल है तो बच जाएगा आदमी। फिर फिब्रिन थ्रोम्बस होता है प्योरली, उसके अंदर जो होना है फिब्रिन जो है ना आखिरी में फिब्रिन क्लॉट बनाता है, तो उसको फिब्रिन थ्रोम्बस कहते हैं। प्लेटलेट इसमें बहुत कम होते हैं बेसिकली, और बेसिकली फाइब्रिन स्ट्रैंड्स आपको मिलते हैं इसके अंदर। ये जो आपको मिलेगा फिब्रिन थ्रोम्बस, ये स्मॉल वास्कुलेचर में मिलेगा, स्मॉल वेसल्स में। और उसमें अंदर माइक्रो इन्फेक्शन की भी वो वेसल्स आ जाती हैं जो ब्रांच वेसल्स होती हैं, जैसे कि एंटीरियर डिसेंडिंग की ब्रांचेस हैं, उनमें फिब्रिन थ्रोम्बस हो जाता है। वहाँ पे अब आप इतनी ज़्यादा वो पेनेट्रेटिंग वेसल होती है कि वहाँ पे आप अगर कर भी दें एंजियोप्लास्टी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको CABG करना पड़ता है इसमें। एक चीज़ होती है हाइलिन थ्रोम्बस, हाइलिनेशन हो जाती है, हाइलिन माइक्रोथ्रोम्बा है। इसके अंदर इजोनोफिलिक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर फाउंड इन द माइक्रो सर्कुलेशन इन मैनी ऑर्गन। असल में किडनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हाइलाइजेशन या हाइलिन थ्रोम्बस का। ये डायबिटीज़ में भी होते हैं और दूसरी डिजीज में भी होते हैं। SLE में खास तौर लूपस के अंदर बड़े कैरेक्टरिस्टिक हाइलिन थ्रोम्बोसिस मिलेगा आपको अगर आप किडनी की बायोप्सी करेंगे। ये मिलेगा आपको वेसल वॉल पे, आपको ये हाइलाइजेशन हो रही है उसकी, और उसके ऊपर जो है ना ये रुकावट आ रही है, और दैट इज़ हाइलिन थ्रोम्बस। बेसिकली इसके अंदर जो मटीरियल है वो हाइलिन प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर प्लेटलेट्स की इतना काम नहीं है और ना फाइब्रिन का काम है, बल्कि इसका अपना जो मटेरियल है वो खुद उसको प्रॉब्लम कर रहा है, स्टेसिस कर रहा है। इन्फेक्टिव थ्रोम्बोसिस आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस के अंदर कि जो क्लॉट है या थ्रोम्बस है, अगर वो उसके अंदर इंटैपमेंट हो गया माइक्रो बैक्टीरिया या इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म का जमा आप कर दें इसमें, तो अब वो चीज़ जो कहलाती है वो इन्फेक्टिव थ्रोम्बोसिस। ये टूट गया अगर, ये पूरी बॉडी के अंदर जो है ना, ये आपको मालूम है फिर क्या करेगा, जिसको मैंने आपसे कहा था कि पाइमिया, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, जहाँ वो फोकस पैदा करते हैं वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। प्राइमरी थ्रोम्बस उस कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर आपको कोई भी जो है ना इटियोलॉजिकल फैक्टर नहीं मिल रहा, नेचुरल प्रोसेस है, ये इडियोपैथिक है, जो एज ग्रोइंग है। वो एज ग्रोइंग की वजह से जो वही प्रोसेस है कि एथरोस्क्लेरोसिस है, वहाँ पे प्लाक बना, प्लाक जो है बढ़ गया साइज में, स्टेसिस हो गया, अगर वो रप्चर होगा तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगा। तो वहाँ पे बेसिकली जो है ना प्लेटलेट थ्रोम्बस बनेगा, उसके ऊपर फिब्रिन थ्रोम्बस बनेगा। अगर आपके पास फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी अच्छी है तो फिर तो डिजॉल्व हो जाएगा, अगर फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी पुअर है तो फिर वो मज़ीद और विशेष साइकिल में आएगा और इस वेसल को कंप्लीट ब्लॉक कर देगा। एक चीज़ होती है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द थ्रोम्बस, ये स्ट्रेटिफाइड थ्रोम्बस। अब इस थ्रोम्बस को स्टडी करेंगे कि किस में चांसेस है थ्रोम्बोसिस होने के। अभी अलग अलग है, पल्मोनरी का अलग है, फला का अलग है। इसके अंदर पल्मोनरी को एक मिसाल मिला के पेश कर देते हैं चले कि एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट ऑनगोइंग विद इन 6 मंथ्स और पैलिएटिव, इसका एक पॉइंट है। दूसरा पैरालिसिस और रिसेंट प्लास्टर एम्बोलाइजेशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर आपने क्या किया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किया था और उसके बाद जो है ना वो पैरालिसिस हो गया उसको। 1 रिसेंटली बेड रीडिंग और मोर देन 3 days, जैसे मेरे फादर को मैंने अभी बताया, ये एक स्कोर करके वो मेजर सर्जरी तो नहीं हुई थी, अगर मेजर सर्जरी होती तो फिर भी एक स्कोर कर लेते वो, लेकिन उनको अटैक हुआ था हेमोफिलेजिया का रिक्वायरिंग जनरल और रीजनल एनेस्थीसिया या फिर एनेस्थीसिया दिया गया उस मरीज को। तीनों कंडीशन में एक पॉइंट दिया जाए। लोकलाइज टेंडरनेस अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीप वेन सिस्टम, चाहे वो नीचे सफेनस सिस्टम हो, चाहे वो पॉप्टिकल सिस्टम हो, चाहे वो फीमोरल सिस्टम हो, जहाँ पे भी आपको टेंडरनेस मिलेगी
जैसे फ्लिग्मेजिया अल्बर्टोलेंस की मिसाल दी थी मैंने, वो 1 पॉइंट है। इंटायर लेग स्वलन, पूरा पूरा जो है ना वो स्वलन हो गया लेग, ये 1 पॉइंट है। वीनस ब्लॉकेज, काफ स्वलिंग 3 सेंटीमीटर लार्जर देन एसिम्प्टोमेटिक साइड। एसिम्प्टोमेटिक साइड के मुकाबले में दूसरी साइड जो 3 सेंटीमीटर लार्ज मिल जाए काफ के अंदर, क्योंकि काफ के अंदर 2 मसल्स हैं, गैस्ट्रिक्टीमियस है और सोरियस है। ये पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं इसको। इसकी कॉन्ट्रैक्शन से जो है ना मूवमेंट होती है ब्लड की ऊपर की तरफ। अगर यही आपने जो है ना वहाँ पे स्टेसिस कर दिया तो वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो क्लॉट फॉर्मेशन बाकायदा मरीज बताता है कि ये देखें ये क्या चीज़ है। पिटिंग एडीमा कन्फाइन टू द सिम्टोमेटिक लेग। अब वहाँ पे जो है ना जब आप ब्लॉक करते हैं वेनस सिस्टम को, तो इसका साथ जो इसका दुमछल्ला है वो जो है ना वो लिम्फेटिक सिस्टम की, वो भी जो है ना स्टेक पे आता है। इस तरह से पिटिंग एडीमा डेवलप कर देता है। कोलेटरल सुपरफिशियल वेन्स नॉन वेरिकोज, सुपरफिशियल वेन्स है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं इसको आप। और नीचे से वेन जो वो जो हो जाती हैं ब्लॉक, उसको फ्रीबल थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो वो आपको नज़र भी आ रही होंगी कोलेटरल सुपरफिशियल वेन्स, नॉन, लेकिन वेरिकोज नहीं होंगी, टॉर्चेस नहीं होंगी, वो 1 पॉइंट है। प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड पहले की पास हिस्ट्री है उसकी डीबीटी की 1 पॉइंट है। एन ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस इज एटलीस्ट एज लाइकली एज डीबीटी, यानी करीब करीब आपको वो पढ़ा है कि ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस आपको मिली है जिसने वो चीज़ कॉज की। मिसाल के तौर पर पैरालिसिस कॉज किया है किसी को, परमानेंट एम्बोलिज्म कॉज किया किसी को, तो उसका 2 पॉइंट्स हैं। क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी स्कोर जब आप इनको जमा कर लेंगे, अगर ये 1 पॉइंट से भी कम है, 1 या 1 से कम है, तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस कम है। लेकिन 2 पॉइंट और मोर अगर स्कोर करता है पेशेंट, आउट ऑफ इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2 नेगेटिव पॉइंट है -2, कि आपको अल्टरनेटिव डायग्नोसिस मिल गई है, डीबीटी नहीं मिला है तो -2 है, मतलब +2 हो जाएगी। तो उसको स्कोर अगर आप करेंगे तो 2 से ज़्यादा होगा तो वीनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे, और अगर 1 से भी कम हो या 1 हो या कम हो, तो इसका मतलब आप स्टेटिफिकेशन निकालते हैं हर चीज़ का, तो थ्रोम्बोसिस की भी स्टेटिफिकेशन होती है ना। और ट्रॉमेटिक थ्रोम्बस, जहाँ पे ट्रॉमा हुआ, चेस्ट इंजरी में हुआ है, लिम इंजरी में हुआ है, लोकलाइज देखे आप भरपूर तरीके से जो ट्रॉमा हुआ है, किसी को बेल्ट से मारा गया है, किसी को किसी चीज़ से मारा गया है, वहाँ पे जो है ना इंजरी हुई है, और जो लोकल वेन्स हैं यहाँ पे खास तौर पे वो स्टेक पे आई हैं, और वहाँ पे स्टेसिस हो गया है, ब्लॉक हो गई हैं, और ब्लॉक होने के बाद जो है ना उसके अंदर वो रिकॉर्ड ट्राइड ऑपरेटिव हुआ है, और उसने वीनस थ्रोम्बोसिस कर दिया, एडीमा हो गया, और उसको एंटीकोगुलेंट दिया है, पेशेंट को नॉर्मल हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक थ्रोम्बस। ट्रॉमेटिक थ्रोम्बस जो होता है वो आपको बाद दफ़ा अंदर चेस्ट के वॉल में भी मिल जाता है। मिसाल के तौर पर इंटरनल थोरेसिक जो है ना आर्टरी के साथ जो कम्युनिकेटिंग वेन्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त चेस्ट इंजरी होती है, उसमें भी हो जाता है। तो ट्रॉमेटिक थ्रोम्बस जो होता है वो हेड इंजरी में भी हो जाता है, उसके अंदर वेन से बहुत सारी पूरा सिस्टम है पूरा। तो ट्रॉमा हुआ और वेन के ऊपर आया स्ट्रेस, और वहाँ पे जो है ना रप्चर हुआ, ज़रा भी अनलिथिल इंजरी हुई, और वहाँ पे फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। रेटिनल ब्रांच वेन थ्रोम्बोसिस, ये इसकी मिसालें हैं जो आपके सामने पेश की जा रही हैं। ब्रांच वेन थ्रोम्बोसिस होता है, ये वही है मैंने लेमिनेटेड थ्रोम्बोसिस की बात की, मिक्स थ्रोम्बस की बात की आपसे, कोरिलेशन की आपसे बात की, लाइन्स ऑफ ज़ेन वाली। ऑर्गेनाइज थ्रोम्बस हो गया, न्यूरल हो गया थ्रोम्बस जो कि हार्ट के अंदर था, वाइट थ्रोम्बस इसके अंदर जो वेनस होता है ज़्यादातर, एनुलर थ्रोम्बस वगैरह, इसके नाम लिखे गए हैं। लेकिन मैंने जो क्लासीफाई किया है ये ज़्यादातर उस पर आप बात करते हैं, ये पहले मैंने डिस्कस किया है। तो अगली जो हमारे पास सेशन होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस किस तरह होता है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और फिर आगे उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। आई होप कि ये जो है ना सेशन 1 मैंने किया है, इसको रोका है यहाँ पे, ताकि आप यहाँ तक समझ लें इस बात को, अगर समझ सकें, और इसको याद रखें अगर याद रख सकें। तो किताब से इसको तैयारी कर लीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।